Hello everyone, welcome to the Narayan IS Academy YouTube channel. I am Amol Bagde and today we will discuss UPSC 2025 GS1 answer key. We will have a detailed analysis of the paper. We will see what kind of a trend they are following, what kind of a questions they are asking in all the subjects, and we will see possible answer key. We cannot give you the exact answer key, but we can give a possible answer key and what will be the cutoff this year. We will see at the end of the discussion. So let us begin with how overall the first impression, how was the paper. The fact 4 were easy to moderate. The fact 4 here means economy, geography, and history. These four foundational subjects, the questions more or less they were easy to moderate, but the paper was little bit lengthy due to the options it has given, like the three statements were given and then you have to arrive at the answer. So it was little bit lengthier. What if you have a conceptual clarity, if you know the details of the information provided in the question, then you can easily answer this question. So around 35 to 45 questions they were from these sections, have four sections. Thereafter the economy in this year, it was not a question simply based on the concept, but they have integrated the economy with simple CSAT, simple mathematics they have asked. We will see how they have asked the questions. So that's what made the paper little bit lengthy due to these options. And this year the facts were also included into the option, and these facts were not easy at all. Okay, usually UPSC do not focus on the factual things, but this year they have included so many facts in the options, so that makes the question paper a little bit difficult, because if you know the facts then it becomes very easier, but if you do not know the facts then it becomes very difficult to arrive at the right choices. So if you analyze the question pattern here, okay, environment around 20 questions, history they have increased the question for the history section, they have included ancient history, medieval history, art and culture, and they have reduced some of the polity questions here and they have increased in the history section. Thereafter geography 14, economics they have 21 questions, science and technology here they are focusing more on a technology part rather than science part. Thereafter your current affairs. Okay, now the questions that I have given here, they are debatable on which section they belong to, because some of the economic questions they might come into the fold of current affairs, okay, or some of the science and technology they might come under the current affairs. So they are little bit flexible here, but overall we can say that this kind of a pattern has been followed. Usually UPSC do not have trends. The only trend UPSC follow is that they do not follow any trends, and the UPSC is like an organism. UPSC is like an organism constantly evolving itself. That is why it never lets the candidate sit, they are always on their toes. You have to always look for the new ways. This time they have, formulated the question in such a way. I mean, it really is remarkable how they have formulated the question. The options this year, the options they have given this year, they are really, really remarkable. It really tests the, your knowledge, your conceptual clarity. If you have that conceptual clarity, you can really enjoy these kind of questions. If you do not know, then it becomes very difficult to handle such kinds of question. So let us see what kind of questions they have asked. We will see the paper and we will try to decipher from which section how many questions they have asked. We will discuss here with full explanation. Let us see that. This is a series B. Okay, let us see the first question. Consider the following type of vehicles. Consider the following type of vehicles: full battery electric vehicle, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. The question is about how many of the above are considered as alternative powertrain vehicles. Now, what is the alternative powertrains? These are powertrains that are not based exclusively on the internal combustion engine. These are not completely based on the internal combustion engine. The main option include hybrid, plug-in hybrid, full battery electric, and hydrogen fuel cell. So if you look at the options, all the three are here. So the answer will be C, all the three. This is based on the technology part. Second one is also related to science and technology here. With reference to unmanned air vehicles, consider the following statements. Based on the drones.
Okay, all types of UAV can do vertical landing. All type of UAV can do automated hovering. All type of UAVs can use battery only as source of power. Okay. Now, whenever you are dealing with such kind of a question in which they have universal words, like all, none. So you have to be very careful while dealing with these kind of a questions, because most of the time, this kind of a statement, 90% of the time, these are false statements. Okay. So when the statement are absolute and universal, you will check it twice, thrice before you mark your answers. So here all type of UAV can do vertical landing. No, some of the UAVs do not do vertical landing. Similarly, this is also a wrong statement. This is also a wrong statement. So answer would be here D, none. Okay, not all type of UAV do vertical landing. Okay, and not all are capable of automatic hovering. So you have to be very careful while dealing with such kind of a universal statements. Next one is here electric vehicle batteries. This year they are focusing more on the climate change issues more, environmental side more. So they are asking which of the above usually make up cathode. Now there are two. One is anode, one is cathode. So this graphite is used as anode, not as a cathode. Therefore the answer would be 1, 3 and 4. That is only 3. The answer here would be only 3. Thereafter, next question. Okay. Here, consider the following. How many of them contain the plastic? Okay. All the three contain the plastic. Even the car tires, synthetic rubber being a form of plastic polymer. Thereafter, your cigarette butts, cigarette contain plastic specifically in their filters, which are primarily made from the cellulose acetate. So all the three options here are containing the plastic. So answer would be C here. Thereafter, coal gasification technology. This year they have asked so many questions which were asked in the previous year UPSC questions. So UPSC sometimes ask these questions. And coal gas technology, coal gasification technology. So this is the right option. This is the right option. This nitroglycerin, this is typically produced from glycerol and nitric acid, not a coal gasification. So this would be a wrong choice here. Let me just increase the. Okay. Okay. Thereafter. What is the common characteristics of chemical substance generally known Cl20, HMX and LLM? Even if you knew the HMX, you would easily answer this question. These are explosive in the military weapons. Even if you knew any one of them, Cl20, LLM-125 or HMX, you would easily mark this option. That is answer B. These are explosive in the military weapons. Let us see the next one. Okay, let us consider this one. It is expected that Majorana 1 chip will enable quantum computing. This is correct one. Majorana 1 chip has been introduced by the Amazon Web Services. No, it is introduced by the Microsoft. Second one, deep learning is a subset of machine learning. That is also a correct statement. So answer would be here 1 and 3. Okay, deep learning is a subset of machine learning, just as machine learning is a subset of artificial intelligence. Thereafter, monoclonal antibodies. This is related to the science and technology part here. So they are man-made proteins. Yes, they are man-made proteins. They stimulate immunological function due to their ability to bind specific antigen. Now this is a very specific function assigned to this kind of antibodies. This is also a true statement. Thereafter, they are used in treating viral infection like that of Nipah virus. The trials were going on for such kind of diseases. So that statement is also true. Therefore, answer 1, 2 and 3 here. Thereafter here, no virus. Again here, see, this kind of a question you have to be very careful. No, no, no. It is a universal word here used, just like all were used in the previous question. So here, no virus can survive in ocean waters. This is not a true statement, because some of the viruses, they can survive in the ocean water. Thereafter, no virus can infect bacteria. Some of the viruses can infect bacteria. This question was actually previously asked around 2015-16. No virus can change the cellular transcription. This is also a wrong statement. So answer would be here. Okay. Okay.
This would be the answer. None. None is true. This will not be an answer. All three. Okay. The question is asking about how many of them are correct. So none of the statement is correct in the ninth question. Thereafter, activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutant from effluent stream and to radiate contaminant from the various industries. This is a true statement. Thereafter, activated carbon exhibit large surface area and strong potential for absorbing heavy metal. This is also true. Activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content like wood. Yes, it can be extracted from these kind of sources. So see, now this year they have asked such kind of a statement. So it becomes really difficult to arrive at the conclusion. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. Okay. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Now we know that both the statements are true. So this option will be eliminated. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. This option will also be eliminated. Now we have left with only two choices. Now we have to make sure that both these are explanation for this one. Now what this option is saying, activated carbon is a good and attractive tool to remove pollutant from effluent streams and remediate contaminant from the various industries. Now how this statement, because it has a strong absorbing material, just this is a good statement. Activated carbon can be easily synthesized. Now this statement explain the reason for this one, while this statement does not, okay, related to the statement 1. So we can say that statement one of the statement explains statement 1. This wouldn't be an answer. Answer would be B here. Okay, both statement are correct, but only one of them explains statement 1. This statement does not explain. Okay, okay, just a minute. An attractive tool. Okay, good and attractive tool. Attractive because this one. So wait a minute. Yes, yes, yes. A will be the answer here. Okay, A will be the answer because it is attractive. Why it is attractive? Because it can be easily synthesized from the environmental waste. Okay, so answer would be A here. Let us see the 11th question here. What is it saying? Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of the global carbon emission. That is a true statement. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing the cement. That is also a true statement. Limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. That is also a true statement. So now here the answer will be both statement 2 and 3 are correct. Yes, they are correct. And both of them explain statement 1. Yes. So answer here would be A. Thereafter we have question number 12. At the 29th United Nations Conference, India refrained from signing Declaration on Climate and Health. Yes, that is true. Why? Because it is not a mandatory one, it is a voluntary one. If India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Okay, now decarbonize means we will reduce the use of carbon as a component in the health industry. But here we are saying that it contributes significant amount of country's total carbon emission. India's health sector, how much? Around 2%. So if you want to decarbonize the India's health sector, it will compromise the health industry in India. So that is why India refrained from signing this declaration. So here option 1 is correct, option 2 is wrong, and option 3 is correct. So how we will arrive at the conclusion here? Only one of the statement 2 and 3 is correct. Yes, and that explains statement 1. So option C will be the answer here. Thereafter, this kind of choices that we have in this kind of a paper. That is why the paper was a little bit lengthy, because we have to arrive at the right choice after eliminating all other things. So scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth rotation and axis. Yes, this is true statement. Okay, numerous scientific studies suggest that climate change is indeed causing a shift in earth axis of rotation. Thereafter, solar flares and associated coronal mass ejection bombarded outer atmosphere with tremendous amount of energy. This is also a true statement. Third statement is saying Earth's polar ice melts, the water tend to move towards the equator. That is obviously a true statement. So this statement is influencing statement 1. So here what is happening? Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them is explaining statement 1. Yes, this statement is explaining statement 1. As the Earth's polar ice melts, resulting water tends toward equator. This shift in water mass from the pole to equator affects the Earth rotation of inertia and consequently its rate of rotation. Okay, therefore only statement 3 will explain the statement 1. Answer would be here B. Okay.
Let us see the next question here. Yes, Article 14. Here answer would be your A. It is about the Paris Agreement and Article 6. If you know the Article 6, you can, answer this question. But if you do not know about the Article 6, then it becomes a very, very difficult question, fact-based question. Okay, this is about which of the following laws National Solution Finance Hub for Asia and the Pacific. Okay, this is about the Asian Development Bank. The answer here would be A. Thereafter, we have answer 16, direct air capture. Okay, this is an emerging technology. It is about science and technology. The question is about science and technology. What it is saying, it can be used as a way of carbon sequestration. Yes, it can be used to capture the carbon and store it in the ground. It can be valuable approach for plastic production and food processing. Yes, as infrared heating or for cleaning air in food processing environment, it can be used. What? Direct air capture. Thereafter, in navy sector, it can be source of carbon for combining hydrogen to create synthetic low carbon fuel. Yes, it is also true. So answer will be C here, 1, 2 and 3. Let us see question number 17. Okay, this is about the animal. Usually they ask more questions about the animals, but this year they have restricted such kind of a questions, more focusing on the climate change and the technology part. Let us see this one. Regarding peacock tarantula. Okay, now have you heard of tarantula? Have you heard of tarantula? You don't see Nat Geo? आप लोग Nat Geo नहीं देखते हो क्या? Nat Geo पे देखना कभी कभी वो tarantula जो होती है ना, ये एक बहुत ही जहरीली क्या होती है, मकड़ी होती है. It is a kind of a spider. ये क्या है? एक तरीके का स्पाइडर है. So it is not a omnivorous crustacean. Crustacean मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जिनका जो बैक होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, शेल. जैसे कि कछुआ, केकड़ा. केकड़ा देखा है आपने? उसका जो ऊपर का जो होता है ना, वो कैसा होता है, एकदम है होता है ना केकड़ा, वो हो गया. तो उनको कहते हैं क्रस्टेशियन. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑब्वियसली इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया. यूजुअली ये एंडेमिक टू आंध्र प्रदेश में ही है. इट लुक्स लाइक ए ब्लूइश कलर में होती है ये टेरेंटुला, मकड़ी होती है. इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज. अब ये आर्बोरियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आर्बोरियल मतलब ऐसी स्पीसीज विच लिव ऑन द ट्रीज. क्या होता है आर्बोरियल स्पीसीज? मतलब क्या होता है? दे लिव इन द ट्रीज. So that is also true. So both the statements are true. Statement 1 is wrong. So these options are gone. Answer would be D here. And this species is critically endangered. Okay, this species is critically endangered. That is why they have asked this question. Okay. Let us see this question. Consider the following statement. Carbon dioxide emission in India are less than 0.5 ton CO2 per capita. This is a wrong statement because in 2022 we had 1.94 metric tons. Okay, so this is a wrong statement. In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in the Asia Pacific. Yes, after China, India is the second largest CO2 emitter. Electricity and heat producer are largest source of CO2 emission in India. Yes, that is also a true statement. So first statement is wrong. 2 and 3 are correct. So answer would be C, 2 and 3 here. Answer would be here 2 and 3. 2 and 3. 18th question we have seen. Let us see the. Okay, this is a really tough question. Okay, if you really know, if you have agriculture background, you can solve this question. Otherwise, you leave it. Okay. So cassava is a woody shrub. Cassava, it is a crop in Brazil. Okay. Ginger is a herb with pseudostem. मतलब क्या होता है कि stem है but it is a false stem. So this is also true. Malabar spinach, Herbicious climber, ये भी true है. ठीक है. Mint जो है annual shrub, ये annual shrub नहीं है. ठीक है. It is a perennial herb है. Papaya is a woody shrub नहीं है. It is a herbaceous plant है. कौन सा? Papaya है ना, उसका wood नहीं होता एक्चुअली उसमें. ठीक है. But it is not a woody shrub as well. तो यहाँ से जो है सिर्फ 3 बराबर है इसके अंदर में 19 के. So answer here would be, where is the answer? Okay. Okay, यहाँ पे है आंसर इसका. ठीक है. Only 3 यहाँ पे true रहेगा. आंसर भी आएगा इसका. ठीक है. उसके बाद में प्लैनेट अर्थ, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये ज्योग्राफी के ऊपर पूछा गया है ये. ठीक है. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है. रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशियन. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ocean produce around 50% of the oxygen in the world. 28% produced by the rainforest. So obviously first statement is wrong. Second statement is true. Well oxygenated surface contains several fold higher oxygen than that in atmospheric air. This is also a wrong statement because in air
कितना परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है एयर में? हमारे 21% होता है। और वेल ऑक्सीजनेटेड जो सरफेस वाटर होता है वहां पे लगभग 8% वगैरह होता है वहां पे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, पहला वाला जो है ये गलत हो गया, दूसरा बराबर है, तीसरा गलत हो गया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं राजा राममोहन राय, हिस्ट्री का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इफ यू हैव जस्ट रेड अबाउट राजा राममोहन राय, यू कुड इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्या कहा है यहाँ पे? ही प्रोजेस अ ग्रेट लव फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, देयर आफ्टर क्रिश्चियनिज्म हो गया, इस्लाम हो गया। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सो डायरेक्टली यू कैन मार्क द आंसर सी हियर, नथिंग टू बी डिस्कस्ड इन दैट क्वेश्चन। दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यहाँ पर भी क्या है, बायकॉट ऑफ द लॉकआउट फॉरेन क्लॉथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स। अभी ये कैसा है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, तो तीसरे को निकाल दो यहाँ से, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द सेटलिंग डिस्प्यूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये एक वाला जो है वो रॉन्ग है यहाँ पर। हाँ, इरिगेशन डिवाइस अरागत्ता, अभी ये जो है ना यहाँ पे, ये सवाल ऑलरेडी पूछा है यूपीएससी ने, ये रिपीटेड सवाल है यहाँ पे, मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, ये भी एक रिपीटेड सवाल है, ठीक है। ए लार्ज विद अर्थन पॉट टाइड टू आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक, ठीक है, ये पर्शिया से लिया गया है ये। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे, वो अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एंशिएंट इंडिया अज्यूम द टाइटल्स मत्तविलास, विचित्र चित्त एंड गुणभरा। इट इज टेकन बाय द महेंद्र वर्मन वन। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इफ यू नो द आंसर यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज लीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Thereafter, it is also a easy question. Fahiyan, he visited during the Chandragupta II. Chandragupta II. This is also a easy question. Thereafter, led successful military campaigns against kingdom. This is also a easy question, straightforward question. Rajendra I of the Chola Empire. Okay. This is also from the ancient India. The question is saying Amaska is in Godavari river because, okay, this is Amaska. Okay. कंबोज विपस रिवर, अभी कंबोज जो है वो इधर में है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान में, तो विपस रिवर उधर में नहीं है। इस रीजन में जो रिवर है वो कौन सी है, काबुल रिवर है, ये कंबोज वाला एरिया हो गया। अवंतिका महानदी, अभी अवंती जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो नदी रिवर जा रही है वो कौन सी है, नर्मदा रिवर है, ठीक है। उसके बाद में कोसल में सरयू, कोसल ये इधर है, तो ये बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला बराबर हो गया और चौथा बराबर हो गया, दोनों जो है रॉन्ग है, तो कितने हैं, ओनली 2 यहाँ पर बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 27वां हो गया है हमारा, 28वां देखते हैं। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है। विष्णु दिगंबर परशुरामकर जी है, इन्होंने जो पहला गंधर्व महाविद्यालय है वो कहां पर स्टैब्लिश किया था, तो वो लाहौर में स्टैब्लिश किया हुआ था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 29 जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट अ प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द। अभी सवाल को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कैसा है यहाँ पे जो ऑफिसर्स है, यहाँ पे प्रदेशिका जो है कहाँ के ऑफिसर है, ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट और लार्जर टेरिटोरियल यूनिट। उसके बाद में राजू का जो है जुडिशियल पावर, जो भी लार्जर टेरिटोरीज के लिए है। उसके बाद में युक्ता जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर है असिस्ट प्रदेशिका राजू का, तो उनका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सब डिवीजन में है। अब इन सारों का अगर फंक्शन हम लोग पढ़े तो ऑब्वियसली चॉइस जो जाती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, दे वर इंपॉर्टेंट ऑफिसर एट द प्रोविंशियल लेवल, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। उसके बाद में जो है फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर में 2 यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला क्या दिया गया है, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट। अभी यहाँ पे देखिए फिर से जो यहाँ पर आया हुआ है, ये कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल वर्ड है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड है यहाँ पर, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स बी इट्स ऑब्जेक्टिव, तो क्या दिया गया है, लेजिटिमेट एंड पीसफुल, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। उसके बाद में इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल ओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिपरेशन, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जो बिपिन चंद्रा है वहां पे भी दिया हुआ है आंसर, मुझे लगता है पेज नंबर 400 पे दिया गया है, ये एक बार चेक कर सकते हैं आप उसको। उसके बाद में देखिए ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक जो क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो क्या होता है यहाँ पे, दीज आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन एसेट क्लासेस बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्टॉक एंड बॉन्ड।
मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनसे अलग होते हैं ये। तो यहाँ पे स्टॉक और बॉन्ड तो नहीं आएंगे, तो ये ऑल फोर वाला चला गया, ओनली वन आ सकता है, ओनली थ्री आ सकता है, थ्री भी चला गया यहाँ पे। तो ये दो ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर। तो हेज फंड भी हो गया, वेंचर कैपिटल आता है यहाँ पे, और प्राइवेट इक्विटी आती है। तो ये ओनली टू वाला यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आंसर वुड बी बी हियर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, आरबीआई के ऊपर में है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन अगर करने का देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के जब रहते हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे जो सवाल होते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, अभी अगर जिसने आरबीआई के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ के रखा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली पता है कि आरबीआई जो है प्राइवेट कंपनीज को लेंड नहीं करता है। प्राइवेट कंपनीज को लेंड कौन करता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ से सीधा सीधा ही चले जाएगा यहाँ पे। अभी बचे 1 2 और 1 2 5, इसका मतलब 1 2 बिल्कुल सही है यहाँ पे। 1 2 क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। हमको पांचवा देखना है, क्या है? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो क्या है यहाँ पे? सोर्स ऑफ इनकम तो बराबर है, प्रिंटिंग भी करते हैं ये, तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 1 2 एंड 5 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल पहले हुआ करते थे, अभी ऐसे सवाल बहुत कम देते हैं। तो इसीलिए इस तरीके के सवालों में जो है आंसर अराइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे इसमें देखिए कितने जल्दी से आंसर आ गए। ओके, इट इज वेरी इजी, दैट इज व्हाई यूपीएससी जो है इसको चेंज करते रहता है। हाँ, अभी ये भी देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये अभी रिसेंट पास में बहुत न्यूज में है, जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ईडी जो है, बहुत ज्यादा न्यूज में था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द थ्री चला गया यहाँ पे। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में है। डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सिस्टम डाटा मैनेजमेंट, ये भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द फाइनेंस में आता है। तो ये दोनों सही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी आ जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मैंडेट्स, अभी फिर से देखिए यहाँ पे कौन सा आया है? यहाँ पे ये ऑल। ऑल मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट या फिर यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे। तो जब भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे तो उनको बहुत ही अच्छे से देखना है। इसको क्या बोल रहा है? आरबीआई मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये ऑल कंपनीज के लिए नहीं है, टॉप की जो 1000 कंपनीज है ये उनके लिए है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2022-23 से मैंडेटरी कर दिया है। इनको जो है डिस्क्लोजर करना पड़ता है लार्जली नॉन फाइनेंशियल, तो इनको जो है ईएसजी में करना पड़ता है, मतलब उनको एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस उनका जो है उन मैटर्स पे इनको क्या करना पड़ता है? ये रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये बहुत ही सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो ओनली 2 वुड बी द आंसर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 35 क्या कह रहा है यहाँ पे? इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेयरिंग, ठीक है, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये टैक्स में है। तो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर जो है इनकम यहाँ पे अपने इंडिया में वो टैक्स के अंदर में नहीं आती है, लेकिन जो एलिड सेक्टर है उनके ऊपर टैक्स किया जाता है। तो ये जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर प्रोविजन, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? डी आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग 36 नंबर का सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडिया हैज जॉइंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैड आइडेंटिफाइड, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर से यहाँ पे ये यूनिवर्सल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आया हुआ है। पूरे के पूरे क्रिटिकल मिनरल इंडिया के पास नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर में, दैट इज व्हाई वी हैव जॉइंड दिस व्हाट पार्टनरशिप, ओके। और ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ये वाला जो है गलत स्टेटमेंट है, ये सही है, ये सही है। तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 3, ठीक है। तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ये यूएस लेड पार्टनरशिप है, 14 देश है वहां पे, यूरोपियन यूनियन है। सिक्योरिंग सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल का वो चाइना के पास में है। चाइना इज कंट्रोलिंग ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग दिस। उसके बाद में देखिएगा, as regards return from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. Bond holders are lender to the company, whereas stockholders are its owners. For repayment purpose, bond holders are prioritized over stockholder by the company. अभी ये इंडियन इकोनॉमी से आया हुआ है, ये स्टॉक मार्केट से आया हुआ सवाल है यहाँ पे। तो यूजुअली बॉन्ड होल्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने जो है आपसे पैसे लिए हैं और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं फ्यूचर में 10 साल बाद आपको जो है मैं 100 रुपए लिए है 150 रुपए वापस करूंगा। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का लोन हो गया, एक तरीका क्या हो गया? लोन हो गया। और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। वो क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। तो जब भी रिपेमेंट होता है तो सबसे पहले जिससे हमने कर्जा लिया है उसको पहले दिया जाता है।
मालिक बाद में रखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है बॉन्ड होल्डर ये रिलेटिवली एट लो रिस्क पे होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, ये एक ऑप्शन दिया गया है कि ये स्टेटमेंट 1 जो है एक्सप्लेन 2 को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे बोथ वाला जो ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। कि क्यों ये रिलेटिवली लो रिस्क पे क्यों है, क्योंकि ये क्या है, कंपनी के लेंडर्स हैं और उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद में जो है 38 वाला, इंडिया अकाउंट्स फॉर लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन, ये बराबर है स्टेटमेंट, ठीक है। अभी इसमें आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता है, लेकिन ये बताइए क्या बताए, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क, ये बिल्कुल भी गलत है। इंडिया में जो है क्या है, सेबी करके एक बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तीसरा जो है यहाँ पे रॉन्ग है, तो आंसर आपका अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर रहते हैं ना तो बहुत अच्छा है। अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है यहाँ पे, यू कैन अराइव एट द आंसर वेरी इजीली। इसके बाद में है 39, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही आंसर है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब सर्कल के जैसे, रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकल करो। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं वहां पर। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बिकॉज ये क्या हो रहा है, अगर ये दो चीजें हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन अपने आप ही कम हो जाएगा। सो आंसर हियर वुड बी ए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे होगा, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब हम लोग किसी से कर्जा ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर कर्जा रहेगा, लायबिलिटी रहेगी। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने जो एयर इंडिया है, क्या हो गया, हाँ दिख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर कैसा होता है, देखिए डिस इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, जैसे एयर इंडिया है, जैसे क्या है, एयर इंडिया है या फिर बीपीसीएल है, ये कोई भारत इंडिया की कंपनी है, उसमें से कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर देती है, सेल कर देती है। तो क्या हो गया, वो वहां से जो एसेट है हमारी क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अभी एक बात बताइए, आपने किसी को लोन दिया हुआ है और उस लोन के ऊपर में क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है, तो आपको रिसिप्ट मिल रही है, दैट इज व्हाई इट वुड बी ए रॉन्ग। सो ओनली ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट हियर। हाँ, अभी ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। फैक्चुअल मतलब सीधा फैक्ट ही नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जो नेटो जो है अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में आया था, क्योंकि रशिया ने जो है क्या है, यूक्रेन के ऊपर में क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो अगल बगल वाली जो छोटी छोटी कंट्रीज है ना, वो उन लोगों ने क्या किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन कर लिया। कल को अगर रशिया ने उनके ऊपर में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो एक कंट्री के ऊपर अटैक मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे ब्लॉक के ऊपर अटैक होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है, इट इज ए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया इसका ये नहीं है, सर्बिया इसका मेंबर नहीं है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, स्वीडन है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओनली 4 वुड बी द ऑप्शन हियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। वैसे देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया हुआ सवाल है, ये जो सवाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया हुआ है। क्या बताया गया यहाँ पे, एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। अभी अगर आपको ये पता है, ठीक है, कि ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है, ये कौन सा, ये ब्राजील है, और एंडीज माउंटेन जो है पूरा यहाँ से गया हुआ है, ये ब्राजील है। तो ब्राजील तो पहले ही कट गया यहाँ से। उसके बाद में जो है उरुग्वे और पारुग्वे इस साइड में है, तो ये भी चले गए। अर्जेंटीना जो है यहाँ पे, और यहाँ से जो पूरा गया है वो कौन सा है, चाइले गया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, वेनेजुएला ऊपर में आ जाएगा, इक्वाडोर आ जाएगा, बोलिविया आ जाएगा और कोलंबिया आ जाएगा। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 आ जाएंगे यहाँ पे, तो ओनली 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये साउथ अमेरिका का अगर आपको मैप भी अगर पता है, ठीक है, तभी भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। ब्राजील एकदम अलग से ही रह जाता है वहां पे। ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, देखिए इक्वेटर से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। लेक, 3 लेक के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, और पूछा गया है हाउ ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का ये जो इक्वेटर है, क्या ये लेक से पास हुआ है। 2 ही लेक ऐसे है, ठीक है,
लेक विक्टोरिया और लेक एडवर्ड, यहां से जो है ना ये इक्वेटर पास होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन। हाँ, ये इसका एक रिपोर्ट दिया गया था, नेशनल जो बोर्ड है इसका, ठीक है। इंडिया जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्ट ऑफ द टर्मरिक, हल्दी जो है हल्दी के लिए होता है। दूसरा है यहाँ पे 30 वेराइटीज टर्मरिक है, बिल्कुल सही है। अपने इधर में आपने सुना है टर्मरिक की कोई वेरायटी का नाम सुना है आपने? है ना, वायगाव वाली सुना होगा। हाँ, नहीं वायगाव वाली जो है अपने इधर में बहुत ज्यादा फेमस है वो, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। महाराष्ट्र में जो है सांगली, सांगली में बहुत बड़ा मार्केट है हल्दी का, ठीक है। सांगली कहाँ पे है? उधर वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहां पे। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो सही है यहाँ पर, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, क्या बोला है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि 6 डिफरेंट लैंड मासेस है, कौन से? अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, फाकलैंड आइलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से जो है इंडिया जो है ऐसे जुड़ा हुआ था पहले यहाँ से, फिर इंडिया यहाँ से ऐसे ऐसे चला गया और वहां पे जाके जुड़ गया था। तो तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में देखिएगा अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे, मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो ये सही बात है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या है, बहुत सारे डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं, उसके कारण डस्ट पार्टिकल भी बहुत सारे वहां पर आ जाते हैं। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, नो दे हैव मोर ड्राई विंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये वाला, ये बहुत ही मतलब फंडामेंटल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है यहाँ पे। नदर्न हेमिस्फीयर में मतलब कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर में क्या होता है, ये जो आइसोथर्म जो होती है ये क्या करती है, जिन दो जगहों पे सेम टेम्परेचर होता है उनको जोड़ने का कार्य करती है। अभी यहाँ पर क्या है, लैंडमास है, अभी यहाँ पर क्या है, लैंडमास है, यहाँ पे बीच में क्या है, ओशियन है। तो ये जब लैंडमास है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन जनवरी, जनवरी में नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहां पे विंटर होता है, ठीक है। आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड, मतलब ये ऐसे आती है और जब ये पानी से जाती है तो ये ऊपर जाती है। तो पानी क्या होता है, गर्म होता है, तो ये इसको ऊपर फेंकता है, ठीक है। लैंड मास जो होती है यहाँ पे क्या होती है, भारी होती है, हवा जो भारी होती है तो इसको अंदर खींच लेती है। तो ये बराबर सही है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, वहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, आंसर वुड बी ए हियर। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा हमारा जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है यहाँ पे। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ज्योग्राफी अच्छे से अगर आपको आनी चाहिए तो आपका फिजिक्स अच्छा आना चाहिए, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आना चाहिए वहां पर। तो क्या है, पहला जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक इज नोन एज वेरी परमिएबल रॉक। परमिएबल और पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर में जो है ना छोटे छोटे जो है ना छिद्र है, सचिद्रता है वहां पे, ठीक है। और परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे होल है तो ये एक दूसरे के अगर कनेक्टेड रहेंगे तो वाटर अपने आप चला जाएगा, लेकिन अगर होल है और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो वाटर जा नहीं पाएगा और ये नॉन परमिएबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, चॉक इज पोरस, पोरस मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे छेद है, एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, यस, जिसमें छेद होते हैं वो क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा बैंक में जो हाथ लगाते बार बार पानी को, वहां पे क्या रखा रहता है, स्पंज रहता है, ठीक है। तो स्पंज के अंदर में क्या छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और वो पोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है, वो पोरस भी होता है और परमिएबल भी होता है। परमिएबल मतलब वहां पे अगर ऊपर से पानी डालोगे तो नीचे से पानी निकल जाता है। कैसे निकलता है, क्योंकि वहां के जो पोर्स है वो एक दूसरे को कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो पानी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। उसके बाद में क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, अभी देखिए यहां पर इसने क्या बोल दिया, क्ले इज नोन एज क्वाइट एंड इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल। इसका मतलब क्या है वहां पे कि पोरस है, वो पोरस है तभी वो परमिएबल है। तो यहीं पर ही इसका आंसर दे दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन होगा। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा ठीक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि नीदर स्टेटमेंट 2 और नॉट 3 इज करेक्ट करके ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अभी क्या बोला है यहाँ पे, ये फिजिकल ज्योग्राफी का है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये जो है ना ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्या है, गैसेस है। तो ऊपर से सन से जो रेज आती है, इनकमिंग रेडिएशन है, और ये बाहर जो जाने वाला होता है इसको ये ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, इसको ये ब्लॉक कर देती है, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है इसी के कारण हमारा टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है यहाँ पर। इसी के कारण क्या है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन है यहाँ पे।
हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, ये भी बराबर है, हमारा एवरेज जो टेम्परेचर है लगभग कितना है 16 से 17 डिग्री सेल्सियस है। एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग ट्रैपिंग द रेडिएशन, ये भी सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद में ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, फैक्ट बेस है इसके ऊपर में, ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है, हमारा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये पॉलिटी से रिलेटेड है, बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट, फिर से यहाँ पे क्या आया है, देखिए शब्द ऑल आया है, ऑल को हम लोगों ने क्या कहा है यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहा है, एक यूनिवर्सल शब्द कहा है, एक एब्सोल्यूट शब्द कहा है, और ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है, एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट, ऐसा नहीं है, ऐसे स्टेट जहां पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है वहां पर ग्राम पंचायत होती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, दो ही होते हैं, इंटरमीडिएट दे कैन अवॉइड वहां पर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा जो है टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन एटलीस्ट एज ऑफ 30 इयर्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है, 30 ईयर की एज यहाँ पर नहीं है, वो कहां पर आ जाती है, कहां पर आ जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में उधर में आ जाती है वो 30 ईयर की, यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, अभी ये जो है वो गवर्नर करते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, तो यहाँ पर आर नॉट करेक्ट, अभी यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या बोल रहा है, कौन सी करेक्ट नहीं है, तो तीनों की तीनों करेक्ट नहीं है, आंसर वुड बी डी हियर। अभी ये बीमस्टेक के बारे में पूछा गया है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, तो इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 7 मेंबर है इसके, बराबर है एकदम बिल्कुल इसका, ठीक है, कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ऐसे क्या है 7 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक, ठीक है, तो यहाँ पर 4 ही कंट्रीज थी, वहां पे नेपाल नहीं था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। टूरिज्म जो सबसेक्टर है वो इंडिया हेड कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड 4। उसके बाद में देखिएगा गांधी पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पे जूरी कौन होती है, मतलब जो कमेटी होती है जो यहाँ पे सिलेक्शन करती है, कौन सी होती है, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, तो जहां जहां पर क्या है पहला ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, अभी बचा 2 4 और 3 4, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ ये गगन वाला है, यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पर देखिएगा प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, ये भी सही है, मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये भी सही है। अभी यहाँ पर देखिए ये कौन सा शब्द है, फिर से मैंने बोला यहाँ पे यूनिवर्सल वाला है, और क्या है एब्सोल्यूट वर्ड है, तो इसमें बहुत ही ध्यान से देखना है क्या है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये बिल्कुल भी गलत है, ये नेवी में भी दे सकता है और ये रोड में भी दे सकता है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो ओनली 1 एंड 2 यहाँ पे क्या है करेक्ट है। हाँ उसमें देखिए एआई एक्शन समिट, अभी ये क्या हुआ था, ये पेरिस में हुआ था, तो पहला जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल भी सही है, लेकिन यहाँ पर यूएस और यूके जो है इन्होंने साइन नहीं किया हुआ था यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। ये सवाल जो है थोड़ा सा भी ये पेचीदा हो गया है, 56 नंबर का जो सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट है, इसको 2025 आंसर सही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 2021 को भी जो है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट माना है, दोनों है, अभी यूपीएससी 2025 वाला मान रही है यहाँ पे, ठीक है, या 2021 वाला मान रही है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आंसर जो है ना थोड़ा सा पेचीदा ही है यहाँ पे, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, अगर उन्होंने 2025 को अगर ये मान लिया है तो आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं 2021 वाला अगर हम लोग रेफरेंस में लेंगे पहला वाला जो माना था, तो फिर ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक दो सवाल जो है ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और उसका जो सही आंसर है हमको यूपीएससी की आने के बाद ही पता चलेगा, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है ये यूनाइटेड नेशन के जो है ना, यहाँ से यूनाइटेड नेशन का जो वेबसाइट है मैं वहां से ये लेके आया हूँ, तो यहाँ पर देखिए 2025 को भी इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट दिखाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2021 को भी देखेंगे तो इसको भी दिया है, अभी जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो है 80 साल होने वाले हैं उसके उपलक्ष्य में जो है इन्होंने फिर से ये इंफॉर्मेशन निकाली है, जहां पर इन्होंने 2025 को भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट बताया गया है,
तो अभी यूपीएससी कौन सा लेती है, 21 वाला लेती है या फिर 2025 वाला लेती है, ये डिपेंड करता है अभी। तो उसको जो है थोड़ा सा हम लोग अभी जो है वहां पे रख देंगे एबियंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है या तो डी होगा या तो सी होगा। तो पहले प्रायोरिटी जैसे 2025 को किया है तो हम लोग इसको डी ही मानेंगे। अगर इन्होंने 21 का मान लिया तो फिर ये आंसर सी भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद में देखिएगा अभी ये जो है ना आपकी जो एक्टिव रीडिंग है ना, इसको टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन। कैसे कर रहा है देखिए, इसमें जो ये स्टेटमेंट है ना ये भी सही है, ये भी सही है, इंडोनेशिया भी हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द दिया गया है ना, इसको बहुत ही आराम से पढ़ना है कि यहाँ क्या दिया गया है, मल्टीकल्चरलिज्म। और जो दिया गया था यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म। देखिए जो इसका जो थीम था उस थीम में जो है मल्टीलैटरलिज्म दिया गया है, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, मल्टीकल्चरलिज्म। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जल्दी जल्दी में इसको मल्टी देख लिया, वहां पे कल्चरलिज्म देख लिया और आपने इसको सही मार लिया तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। दिस इज टेस्टिंग योर हाउ यू आर रीडिंग इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, लैटरल की जगह कल्चर वहां पे डाल दिया है। ये पॉलिटी से आया हुआ सवाल है। यहाँ पे देखिए लोकपाल के ऊपर में क्या कह रहा है यहाँ पे, पावर ऑफ लोकपाल ये जो है दोनों के लिए अप्लाई होता है। आउटसाइड पोस्टेड भी है, स्टिल दे आर अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, आउटसाइड पोस्ट होने से दे डोंट सीज टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद में चेयरपर्सन जो है यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद में जो एज है वो 45 ईयर्स के नीचे नहीं होनी चाहिए, ये सही ऑप्शन है। लोकपाल कान इंक्वायर ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पे इट कैन इंक्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, ओनली 3 जो है ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने फैक्ट दिए हुए हैं, अगर ये आपको पता है कि सब तो इतने मार्जिन से जीते हैं तभी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो ठीक है, ये पहला वर्ल्ड कप है जो क्या हो गया था, न्यू दिल्ली में खेला गया था यहाँ पर। लेकिन ये जो इन लोगों ने स्कोर दिए है ना, ये जो है ये स्कोर मेन का है और ये स्कोर किसका है, विमेन का है। इन्होंने क्या कर दिया, स्कोर को एक्सचेंज कर दिया और यहाँ पे दे दिया। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, सिर्फ 1 यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ पर एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पे देखिए, और ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि जो गुकेश है, दोमरा जो गुकेश है, ही बिकेम द वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं जो डिंगलेरन को हरा के हुए थे। तो अभी जो ओलंपियाड है इट इज ए टीम गेम। ये क्या है, ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, टीम गेम और इंडिविजुअल गेम दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो दिस वुड बी ऑब्वियसली ए रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला वाला जो है। ठीक है, और इन्होंने जो ये जीता था ये डिंग लीरेन के खिलाफ जीता था जो चाइना के थे, वो अलग था वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओलंपियाड ये जो है ये अलग है, दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। अभिमन्यु मिश्रा ये सही है ये वाला। तो यहाँ पर जो है ओनली 2 इज द रॉन्ग है। 12 साल की उम्र में ये क्या बन गए, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल। अभी इस समय इस टाइप के जो होते हैं ना, सम जहां पे लगा होता है, सम जहां पे लगा होता है, तो ये मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, होंगे ऐसा नहीं है, 10% इधर उधर हो सकता है यहाँ पे। तो क्या है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर्स। बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन से होते हैं, यहाँ पे इट्रियम हो गया, टर्बियम हो गया, यूरोपियम हो गया। इनको कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे टीवी में इस्तेमाल करते हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरेसेंट का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर अगर एनर्जी डाल दी तो वो लाइट इमिट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंट। तो वो यहाँ से जो है ना रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरीके की ये इमिट करते हैं, इसलिए उनको टीवी में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जो टेलीविजन होता है यहाँ पर जो बेसिक कलर होते हैं कौन से, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं को फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके जो है बाकी के कलर दिखाए जाते हैं। इसलिए देखिए आपकी टीवी में जब भी कुछ खराबी आ जाती है ना, तो सबसे पहले ब्लू दिखता है, या तो फिर रेड दिखता है, या तो फिर ग्रीन दिखता है। तो वो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, इनकी वजह से आता है वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, दे इमिट लाइट आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। दीज एलिमेंट्स लाइक यूरोपियम, सेरियम एंड गैलियम आर क्रूशियल इन फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यस, बिकॉज दे हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन टेलीविजन। क्योंकि टेलीविजन में अलग अलग वहां पे लाइट दिखाना पड़ता है, तो बेसिक जो कलर होते हैं वहां पे कौन से होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। ठीक है,
ये मेंस का सवाल आया होता है इसके ऊपर में, 2028 नहीं है यहाँ पे, ये 2030 का है नेशनल रेल प्लान। कवच जो है यहाँ पे ये जर्मनी के साथ में नहीं है, हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है यहाँ पर, ठीक है। और ये RFID ये सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट में पहला करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट नहीं है, तीसरा जो है करेक्ट है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। स्पेस मिशन है ये, फैक्ट बेस्ड सवाल है ये, और जहां पर क्या है माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड है, तो ये ऑल थ्री है, आंसर वुड बी सी हियर। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये भी अभी बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको पता है तभी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ मत लगाइएगा। क्या है यहाँ पे, डॉनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल सही है। IL-76 जो है ये रशिया का है, ये सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। उसके बाद में ये ग्लोबमास्टर 3 है, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो ये गलत है और ये दो सही है, तो ओनली 2 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 65 वाला, ये इसके पहले भी ये सवाल पूछा गया है, ये मैं फिर से इसको जो है स्टार मार्क करके रख देता हूँ यहाँ पे, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, और यहाँ पे ड्राई आइस का भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में देखिए पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्डनिंग पावर मतलब क्या होता है, जब कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट मिल जाता है उसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन होता है लोगों के पास में कि वो प्रेसिडेंट के पास जाए और उनको बोलिए देखिए मेरी जो दलील है आप एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सरसाइज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या होता है, एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस पे होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, कोई भी जो पावर होता है उनका, ही कैन नॉट एक्सरसाइज दिस पावर्स अलोन, ही ऑलवेज एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये भी पॉलिटी का है, और यहाँ पर भी हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ा है यहाँ पे कि स्पीकर जो है इमीडिएटली जब कोई भी डिसोल्यूशन हो जाता है तो वैकेट नहीं करते ऑफिस, जब तक नई लोकसभा आती नहीं है, और वो आती नहीं है तब तक वो वैकेट नहीं करते, ही रिमेन्स देयर इन द ऑफिस। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और ये जो प्रोविजन है यहाँ पे कि स्पीकर जो है रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी, ये संविधान में दिया गया नहीं है, ये एज अ कन्वेंशन वो करते हैं यहाँ पे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। स्पीकर ऑफ द हाउस, ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है कि उनको जब निकाला जाता है तो उनको निकालने के पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, और उनको इफेक्टिव मेजोरिटी, क्या है, सिंपल मेजोरिटी नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी से उनको निकाला जाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, C 1 and 3। उसके बाद में देखिए ये एंटी डिफेक्शन का भी बहुत रिसेंटली न्यूज में चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र की असेंबली है, मध्य प्रदेश की असेंबली है, वहां पे बहुत ज्यादा एंटी डिफेक्शन लग रहा था वहां पे। तो यहाँ पर जो है स्पीकर का जो डिसीजन होता है, स्पीकर का जो डिसीजन होता है या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होता है, ना कि प्रेसिडेंट का, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। और इनिशियली हमारे संविधान में जो है पॉलिटिकल पार्टी मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन जो 1985 का जो एक्ट आया था, कौन सा, 10th शेड्यूल जो ऐड किया गया था यहाँ पे एंटी डिफेक्शन, वहां पर इसको मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 2। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मेंशन किया गया है। उसके बाद में जो है 69, यहाँ पे जो है ये भी सवाल जो है थोड़ा बहुत रिपीट किया गया था, 2016 या 19 में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है पहला जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है करके बोल रहे हैं, तो नहीं, उनको पावर है, ये आंसर गलत है। दूसरा जो है ये सही है, तो यहाँ पर क्या है, आंसर डी आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है, क्या है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये यूरोपियन यूनियन ने बनाया है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। हाँ अभी देखिए मैंने कहा था आपको कि जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस है उनमें जो है ना थोड़ा बहुत मैथ घुसड़ दिया है इन लोगों ने। अभी देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है यहाँ पर, देखिए सपोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़, क्या दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 80,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट दी गई है यहाँ पर 60,000 करोड़, और गवर्नमेंट बोरोविंग किया है 10,000 करोड़ का, और इंटरेस्ट पेमेंट है 6,000 करोड़ के। तो अभी यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेफिसिट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 20,000 करोड़, क्योंकि कितना है वहां पे 80,000 माइनस 60,000। उसके बाद में फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आपकी बारोइंग रिक्वायरमेंट, तो बारोइंग रिक्वायरमेंट कितना है यहाँ पे 10,000 करोड़ की, तो ये भी सही है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,000 करोड़। देखिए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 1 2 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अभी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो अभी ये किसको कनेक्ट कर रहा है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन सा है, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, ठीक है, जो चाबहार पोर्ट है उधर से कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। कोई लोग जो है यहाँ पे इंडिया टू यूरोप टू अजरबैजान ऐसे भी कह रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है संदिग्धता, तो हम लोग जो है प्रायोरिटी ए को देंगे या फिर हम लोग इसको डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी यहाँ पे 73 का। यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर में दिया हुआ है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्राजील और यूएसए जो है इथेनॉल प्रोडक्शन है, और पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं ये कि ब्राजील जो है लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है, वो जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। यूएसए इज द लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी वहां पे रॉन्ग होगी। दूसरा जो कह रहे हैं वहां पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में जो है इथेनॉल जो बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं, और जो ब्राजील है वहां पे शुगर केन से बनाते हैं, तो ये दोनों भी क्या हो गए बराबर है यहाँ पे। तो इसीलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। यस, तो आंसर वुड बी डी हियर। अभी देखिए ये जो एक स्टडी आई हुई थी, ये जो है स्टडी आई थी वेट बल्ब टेम्परेचर में, तो ये आई थी स्टडी 2022 में, और सवाल कब पूछा है 2025 में। तो इसका मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सिर्फ पिछले साल के नहीं होते हैं, और वैसे भी ये जो क्लाइमेट चेंज है या फिर जो हमारा एनवायरमेंटल जो इश्यू है, ये कोई करंट इश्यू नहीं है। ये कब से चल रहा है, 1970 से चल रहा है। तो हम लोग इसको रिसेंट पास्ट कह सकते हैं या फिर जो कंटेम्प्रेरी जिसको कह सकते हैं कि अभी फिलहाल के जो समय में जो चल रहा है उन सारे विषयों पर ये क्या करते हैं, ये सवाल पूछते हैं। ये 2022 में स्टडी आई हुई थी। तो क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर? वेट बल्ब टेम्परेचर इज द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इनटू एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी जो है ना, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो अगर आपका 35 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर है ना, तो बहुत ज्यादा हीट होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी से जो है हीट लॉस कैसे करते हैं हम लोग, हमको क्या आता है, पसीना आता है। तो पसीना को जब एयर लगती है तो उससे क्या होता है, उसके साथ में हमारी हीट चली जाती है। लेकिन जो वेट एरिया होता है जैसे कि चेन्नई हो गया, वहां पे क्या होता है, जो एयर होती है ना, पहले उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो हमारे शरीर का पानी जाता ही नहीं है, तो हमारी हीट क्या होती है, लूज ही नहीं होती। मतलब कैसा हो गया, देखिए कि जैसे आपने क्या लिए, गीली वाली रुमाल ले ली, और गीली वाली रुमाल को इस पंखे के नीचे रख दिया, या फिर धूपकारे में ले लिया, धूपकारे में सुखा दिया, तो सूख जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन वही अगर मैंने बरसात के समय में रख दी तो कितना टाइम लग जाएगा उसको सूखने के लिए? सूखेगी ही नहीं। क्यों नहीं सूखेगी? क्योंकि जो बगल वाली जो एयर है वहां पे ऑलरेडी क्या है, एयर में क्या है, पानी ज्यादा है, तो रुमाल सूखेगी ही नहीं। तो हमारा बॉडी भी वैसा ही है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारी बॉडी क्या है, सूखती नहीं है, ये जाता ही नहीं है हीट, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो जो ह्यूमिड एरिया होते हैं वहां पे 35 डिग्री में भी जो है हमारी हीट नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, मॉइस्ट रह जाएगी वहां पे, तो फ्लडिंग होगी, साइक्लोन्स होंगे वहां पे। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू यहाँ पर। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो है इकोनॉमी प्लस यहाँ पे सीसेट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंपल मैथमेटिक्स दे दिया है। यहाँ पे ये जो है 10,000 करोड़ ये बस ऐसे ही दे दिया है। यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट होता है उसमें क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, तो कितना हो जाएगा, 50,000 करोड़ माइनस 1500, कितना हो जाएगा यहाँ पे 48,500। अगर आपको ये आंसर पता है, इसका फॉर्मूला पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं 76 जो है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है एनके सिंह के अध्यक्षता में थी, अभी 16वीं फाइनेंस कमीशन भी आ गई है पानगड़िया जी के अध्यक्षता में। तो यहाँ पर देखिए बाकी स्टेटमेंट आप देखे ना, देखिए क्योंकि यहाँ पे कैसा एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने जो दिया था वो 41% दिया था। जो 14th फाइनेंस कमीशन थी, इन्होंने 42% एलोकेशन दिया था। तो ये 42 से 41% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसका यूनियन टेरिटरी में हो गया था, इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया, 1% यहाँ पर कम कर दिया। तो ये जो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला ऑप्शन चला गया। अभी कितना बचा, 134 या फिर 234। तो 1 जो है ये सही है, तो इतना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ये 2 भी चला जाएगा यहाँ पे, तो आंसर सीधा सीधा ही आ जाएगा आपके, अगर ये एक भी आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सवाल जो होते हैं ना बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आपको एक भी फैक्ट पता है तो ऐसे सवाल जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या है, ये आईबीआरडी क्या है, इट इज एक इंस्टीट्यूशन है किसकी, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं से मिलकर के बना है, उसमें से एक क्या है, आईबीआरडी। तो क्या है ये, मिडिल इनकम कंट्रीज को देती है, बहुत सही है ये। थर्ड भी जो है वो भी सही है, लेकिन ये क्या है, सिंगल हैंडेडली नहीं होती है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या है, एक पार्ट है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। 3 अगर रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है, कौन सा 2 वाला अगर रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन बच जाएगा, सी वाला बच जाएगा। ठीक है, सिंगल हैंडेडली ये वर्क नहीं करता है। उसके बाद में देखिएगा आरटीजीएस और एनईएफटी।
ये हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्या किया है यहाँ पे, आरटीजीएस सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, इसीलिए इसका नाम क्या है, रियल टाइम है। इसका नाम ही क्या है, रियल टाइम है। ठीक है, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इसको हम लोग। आरटीजीएस कस्टमरी चार्ज, पहले चार्ज हुआ करते थे, अभी ये फ्री कर दिया है, अभी ये 24/7 और 365 डेज कर दिया है। हॉलीडे के दिन भी हम लोग आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, सिर्फ पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, सही है यहाँ पर। हाँ, अभी देखिए ये, अगर आप ये जो डाटा है मैंने यहाँ से लाया है, जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां पर ये डाटा दिया गया है कि ये जो यूनाइटेड अरब इमिरेट, फ्रांस और सिंगापुर, ये 3 ही देश ऐसे हैं जहां पर पेमेंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यूपीआई को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हो जाएंगे, ओनली 3 यहाँ पे हो जाएगा। ये भी जो थोड़ा सा फैक्ट बेस है, यहाँ पे पीएम सूर्यघर योजना जो है यहाँ पे, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल द 3 स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज ए फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू फ्रॉम बैकडेट। तो यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है कोई भी जो पार्लियामेंट की जो एक्ट है उसको कर सकता है अमेंड। उसके बाद में ये फंडामेंटल राइट को अब्रीज करना मतलब उसका उल्लंघन करना, तो ये उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 2 जो है यहाँ से चला जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा, तो ऑप्शन क्या बचेगा यहाँ पे, 1 एंड 3। तो कुछ ऐसे भी दिए हैं जो बहुत ईजी है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश की इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर। इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। तो ईटा का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स, तो इसीलिए वो ईटा फोर्ट जो है, ईटा फोर्ट से इसका नाम जो रखा गया है। और 2 नेशनल पार्क है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो है देखिए, ये वाला इनिशियली अ पार्ट ऑफ सी स्टेट, तो इनिशियली जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो ये आंसर सही नहीं होगा यहाँ पे, ओनली 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 83 जो है, ये सवाल इसके पहले भी पूछ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आर्टिकल इंटर स्टेट जो काउंसिल है आर्टिकल 263 के अंडर में आती है, बाकी की जो ये 2 बॉडी है ये संविधान में नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कौन सी है। तो यहाँ पर एक ही है, कौन सी, आर्टिकल 263 के तहत में बनाई गई है इंटरस्टेट काउंसिल, तो ओनली 1 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, ये भी पॉलिटी से है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन, अभी देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट में कुछ डिफरेंसेस है, हम लोगों ने क्लास में भी इसके पहले दिया था यहाँ पे, कि गवर्नर को जो है कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशन है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है। इट मींस दैट there are explicitly mentioned in the constitution, but this is not the case with the president. President has situational discretion, not constitutional discretion. तो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ओन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अभी देखिए यहाँ पे कैसा होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो बिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है वहां पर, ये दोनों पास करती है और सबसे पहले जो है स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास में भेजा जाता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास में नहीं भेजा जाता। नाउ गवर्नर हैज द ऑप्शन। अभी ये क्यों सवाल पूछा गया, क्योंकि ये अभी इसका बहुत ज्यादा चल रहा है। रिसेंटली हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ 12-13 सवाल भी पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को जो है 3 महीने का टाइम दे दिया है कि अगर स्टेट से, अगर गवर्नर क्या करता है, आर्टिकल 200 के अंदर में प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल अगर रिजर्व करते हैं, तो पहले कैसा होता था, उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं थी, कभी तक भी वो डिस्कस मतलब वहां पे जो है डिसीजन ले सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं या फिर जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने अपनी ये दलील पेश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू हैव टू गिव योर डिसीजन विद इन द 3 मंथ्स, इसीलिए ये जो है सवाल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है गवर्नर प्रेसिडेंट के पास में भेजते हैं, प्रेसिडेंट ऑन हिज ऑन डू नॉट डू दैट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली ए हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। यहाँ पे ऑल द 3 यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। ये जो है फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी है, हर बार इनके ऊपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड, देखिए ये 5th शेड्यूल के ऊपर में सवाल पूछा गया है। ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग है, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नीदर 1 एंड 2 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, ये जो है थोड़ा सा मतलब ये जो है ना, यहाँ पे मिसमैच कर दिया इन लोगों ने। तो नेशनल ऑटोमोटिव जो बोर्ड है यहाँ पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज में है, क्वायर बोर्ड जो है माइक्रोस में है, और ये जो है यहाँ पर दिया गया है। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हैं, बड़ा फैक्चुअल सा प्रश्न है ये। अगर आपने कोई ये
उस वेबसाइट वगैरह उसकी अगर आपने विजिट की है तब आप ये सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके ऊपर में आया है यहाँ पे। तो कौन से जो है यहाँ पे जो रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लगता है, यहाँ पे क्या पूछा गया है यहाँ पे, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लगता है, तो गवर्नर के इसके लिए लगता नहीं है, पहले जो दो मेंशन किए गए हैं उनको लगता है यहाँ पे। हाँ देखिए गवर्नर के ऊपर में देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आंसर इसका आ जाएगा डी आ जाएगा। ये भी एक रिपीटेड सा सवाल है, 2019 में मेरे ख्याल से आया हुआ था यहाँ पे, तो ये पहला वाला नहीं है और चौथा वाला नहीं है, बाकी के दो है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा यहाँ। इसकी अगर आप साइड पे जाएंगे, ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन जो बोर्ड है इसके ऊपर में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, आप जा सकते हैं खुद जाके चेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ये जो बोर्ड है ये बोर्ड की साइट पर ही दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद में सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, जब वो क्या कर रहे थे, दांडी मार्च, गांधी जी क्या कर रहे थे, दांडी मार्च कर रहे थे, तब उन्होंने ये फेमसली कहा था व्हाट, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। उसके बाद में डांसिंग गर्ल फाउंड मोहनजोदड़ो, बहुत ही इजी सवाल है ये, ब्रॉन्ज से बनाया गया है ये। लीगल डिफेंस, ये भी वन लाइनर है यहाँ पे, बहुत इजी सवाल है ये, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। अगर आप लोगों ने जो है कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक या फिर शर्मा जी की पढ़ी हुई है, या फिर आपने अगर हिस्ट्री की जो है अगर एनसीईआरटी वो पढ़ी है या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो आप आराम से इस सवाल को जो है कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल है ये। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सब्सिक्वेंट, ये पुणे पैक्ट के बाद में इन्होंने कहा था यहाँ पे जो हरिजन है अनटचेबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है पुणे पैक्ट हुआ था, उसके बाद से उन्होंने जो है हरिजन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम जो है शुरू कर दिया था वहां पे। उसके बाद में ये पोर्तुगीज के ऊपर में है, अगर ये आपको पता है तो पता है, नहीं तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तीनों के तीनों क्रॉप है यहाँ पर, ये ऑल द थ्री। 96 में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत जगह पे मैंने देखा है तो अलग अलग यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना 9 टाइम जोन है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में 5 है, यूनाइटेड किंगडम में 9 है। तो अभी कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 हो गए, तो आंसर क्या जाएगा इसका, ओनली 4। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन, तो ब्राजील में जो है 4 है, तो ब्राजील हट जाएगा यहाँ से, कितना जाएगा, ओनली 4। कहीं कहीं पर भी 3 भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट के हिसाब से जो मैंने देखा है यहाँ पे, आप विकिपीडिया पे भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे साइट पे भी चेक कर सकते हो, ब्राजील में 4 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 9 है, न्यूजीलैंड में 5 है, डेनमार्क में 5 है और यूनाइटेड किंगडम में 9 है यहाँ पर। हाँ, ये भी जो है इंटरनेशनल डेडलाइन के ऊपर में ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे इंटरनेशनल डेडलाइन गई हुई है, तो ये अनादिर इन साइबेरिया, नोमिन अलास्का, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 12 घंटे का यहाँ पे जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब मंडे रहेगा तो इधर में जो 24 घंटे पहले संडे रहेगा, ठीक है, तो ये ट्यूसडे नहीं रहेगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, ओनली वन वुड बी द आंसर हियर। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है तमिलनाडु में पेरियार ईवे रामासामी नायकर जो है उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है यहाँ पे 98 वाला। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोट्सवाना जो है डायमंड के लिए है, चाइले जो है लिथियम के लिए, इंडोनेशिया लिथियम के लिए, तीनों के तीनों सही है यहाँ पे, तो ऑल द 3 पेयर्स यहाँ पे है। उसके बाद में देखिए ये थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, मैलोर्का जो है स्पेन में है, नॉर्मंडी जो है फ्रांस में है और सैराडीना जो है इटली में है, तीनों के तीनों यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे नन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे जो आखिरी के जो कुछ 10-12 सवाल है यहाँ पे, वो एकदम ही मतलब वन लाइनर है और बहुत ही ईजी है, कुछ कुछ जो है फैक्ट बेस्ड जो है यहाँ पे अगर आपको पता है, जैसे ज्योग्राफी के हो गए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जिस तरीके से जो ये जो हमारा पेपर आया है, तो जो फैप हो रहे हैं हमारे वहाँ पे इजी टू मॉडरेट है, लेकिन जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज से जो रिलेटेड सवाल है, करंट अफेयर का जो सवाल है, वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम लोग कट ऑफ देखें पिछले कुछ साल का, यहाँ पर पिछले 2-4 सालों का अगर हम लोग कट ऑफ देते हैं, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है सवालों में उसके आधार पर भी दिया गया है, और साथ ही साथ जो सीसैट है, सीसैट के ऊपर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। सीसैट अभी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रह नहीं गया है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं दिखाऊं टाइम जोन अगर दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो देखिए ब्राजील में 4 है, मेक्सिको में 4 है, डेनमार्क 5 है, कनाडा 5 है, डेनमार्क में 5 है, यूनाइटेड किंगडम में 9 है, ऑस्ट्रेलिया 9 है, ठीक है, फ्रांस में सबसे ज्यादा 13 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इसका टाइम जोन का। 2024 का अगर हम लोग देखते हैं तो ये जाएगा लगभग 87.98, ठीक है। इसके पहले का अगर हम लोग देखते हैं 2023 का, तो 75.41, 22 का 88.22, फिर 87, 92, 98 इस तरीके से गया है, तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से जो है चेंज होते गया है। तो इस साल का अगर हम लोग देखें तो जैसे 2024 और 2023 है, तो यहाँ पर लगभग 87.88 गया है,
यहाँ पर जो है 2023 का 75.41 गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 87.88 यहाँ पर गया है और यहाँ पर जो है 75.41 गया है। तो हमारा जो 2025 का जो कट ऑफ है, अभी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था जो ऑप्शंस है, ऑप्शन को थोड़ा सा पेचीदा बनाया गया था, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और उनको जो है वहां पर थोड़ा सा बहुत ही इंटेलिजेंटली उन लोगों ने वहां पे ऑर्गेनाइज किया था, तो थोड़ा सा वहां पे जो है डिफिकल्टी आया होगा बच्चों को। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो मॉडरेट टू टफ लेवल में जो है जाता है, और सेक्शन वाइज अगर देखें हम लोग तो फैक्ट 4 में जो है वो मॉडरेट टू इजी है, और बाकी के जो सेक्शन है मैंने बताया है, एनवायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आते हैं। तो ना तो ये इतना ज्यादा जाएगा 87.88, इतना भी नहीं जाएगा और इतना कम भी नहीं जाएगा, ये तो ये कहीं बीच में लाई करेगा लगभग, मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 76 टू 83 इसके बीच में जो है हमारा कट ऑफ रह सकता है ना। मेरे हिसाब से ये 76 टू 83, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको इस रेंज में अगर मार्क है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसके लिए हम लोग आगे बहुत सारे वीडियोस भी लाएंगे कि मेन की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कौन से बुक्स आपको रेफर करने चाहिए, आपका कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए, इसके लिए मैं एक कॉम्प्रहेंसिवली एक नया वीडियो लेके आऊंगा और वी विल मीट अगेन देन। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और ऐसे रोचक वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, कैसा रहा? ठीक था सर?